Hello everyone, my name is Gajanan. Welcome to our channel Success EduTech. Today we are continue our chapter number 2. In chapter number 2 we have discussed how to find a rational numbers or a real numbers, whole numbers and integers. All these topics we have discussed in lecture number 1. Then we have discussed about a comparison between rational numbers और irrational numbers. We have discussed then form a decimal dividation methods देखा था. Then lateral we have discussed properties of a order of a real numbers. Then roots of a positive rational numbers. Then surds, bit comparison between surds like surds and a comparison of a surds. And then operation on surds like addition, subtraction, multiplication, division. All these topics we have already covered in previous 3 lectures, and in last lectures we have discussed solved the practice set 2.3, and in this exercise in practice set we have already solved all the problems like the addition, rationalization, division, multiplication and a simplest form. All these topics we have already covered in a previous 3 lectures. If you do not gone through it, please go through it, because if you don't know the basics of real numbers and how to solve, then we are not able to move ahead, because basics are very important in your school life and as well as in a future life. Now let's recall. We know that a is greater than b, a is greater than 0, b is greater than 0. Then square root of under root of a, square root of ab, square root of ab is equal to multiplication of a into root of b. So this is a simple multiplication. We already know that if I multiplied a plus b bracket in bracket a plus b and in bracket a minus b, so we get a square minus b square. This is a standard identity of your mathematical variables. Now we already know that square root square is always a number, and a square अंडर रूट में a square अगर लगते हो तो then again same we get a. This is a basic formula, and we already know that these are the various simple basics we already know in your 8th standard. Now let's see. Now solve the example. This is an example. So you have to multiply. First example you have to multiply. So आपको करना क्या है? सपोज आपको दिया है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इसके सामने दिया रूट एक्स. सो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म. सो इसका आंसर क्या रहेगा? रूट एक्स इंटू ए प्लस रूट एक्स इंटू बी. सो दिस इज योर solution. So similarly you have to apply here in example number 1. In example number you have given root 2 multiply in bracket root 2 in bracket root 8 plus root 18. You have to multiply root 2 to the each term of our brackets. So root 2 into root 8 plus root 2 into root 18. After solving we get under root 16 plus 18 to the 36 under root 36. So we know that 16 is the perfect square of 4 and 36 is the perfect square of 6. So 4 plus 6 we get 10. This is your answer. So I hope आपको समझ में आ चुका है. It is a simple multiplication. You have to multiply ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर्स रहेगा उसे ईच टर्म से, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स रहेंगे उसे मल्टीप्लाई करना है. दैट इज द सिंपलेस्ट वन. Now let's see your problem number 2. In problem number 2 you have here is given a 2 brackets. So root 3 in first bracket root 3 minus root 2, in another bracket root 2 root 3 minus 3 root 2. So आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले 1 by 1 सॉल्व करेंगे. Now let's see. मैं सबसे पहले रूट 3 लेता हूँ, देन सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिखता हूँ, दैट इज रूट 2 root 3 minus 3 root 2. देन मेरा रूट 3 लिखा है, अभी बचेगा माइनस रूट 2. सो माइनस साइन देन रूट 2 अनदर ब्रैकेट, सेम वही ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देन 2 root 3 minus 3 root 2. So after solving
वी गेट क्या मिलेगा हमें इसे सॉल्व करने के बाद फिर से अगेन इसे इस टर्म से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो आपको इस टर्म से क्या करना है अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो √3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय 3√2। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 × 3 दैट वी गेट 6 माइनस √3 × √2 6। सो मुझे मिलेगा 3√6 मिलेगा यहाँ पे। सो मैं सेम अगर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2√6 माइनस देन -6। सो आफ्टर सॉल्विंग सो मुझे क्या मिलेगा 2 × 6 आफ्टर सॉल्व √2 × √2 3 2 × 3 6 प्लस 6 6 माइनस 6 3 × 2 6 माइनस 6 गेट कैंसल। सो मुझे मेरे पास बचा गया 2 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 5। सो क्या बचा मेरे पास 5√6 ये आएगा। इसका माइनस माइनस सो मेरा माइनस साइन देन अभी इट 12 कहाँ से आया। लेट्स सी हाउ दिस 12 कम 6 प्लस 6 सो दिस इज प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 12। सो नाउ यहाँ पे कैंसिल होगा यहाँ पे साइन माइनस इंटू माइनस this minus sign into this minus sign we get plus, so I have written here only minus sign, so this is my mistake, so sorry for that. So now √2 into -2√3 we get 6 plus 6 plus 6 12, so हमें मिलेगा 12 minus 5√6। दिस इज माई फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आ चुका है किस तरह से सॉल्व किया है। तो इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Now, so binomial quadratic equation. Binomial means आपको simply binomials means two terms are here. Binomials means two terms equation. Quadratic means square वाली term रहेगी. So these are the some formulas we have given here. Then this is first one standard formula. यहाँ पे अप्लाई किया है a plus b into a minus b. So इसका आंसर रहेगा a square minus b square. सो आपको यहाँ पे दिखे हुआ है। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा a माइनस बी। सो दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल दैट इज फॉर्मूला। नाउ सो सिमिलरली यू हैव टू अप्लाई इन अ सेकंड 5√3 और दिस। सो इफ आई मल्टीप्लाइड 5√3 सो मुझे मिलेगा √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। सो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 3 सो मुझे मिलेगा आंसर 2। दिस इज माई आंसर। सो these are the some examples you can solve it yourself. Now let's move ahead. Rationalization of a denominator. Rationalize मैंने कहा है आपको जो भी रूट पे रहेगा मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स रहेंगे उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो सो यूर बिकम रैशनलाइज नंबर। सो अभी देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। सो हियर एग्जाम्पल नंबर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स 1 बाय। सो हियर गिवन 1 बाय √5 माइनस √3। सो आपको इसे रैशनलाइज करना है तो सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेगा √5 नीचे माइनस साइन रहा तो ऊपर प्लस √3 इसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर रहा है देन 5 प्लस √3। सो इफ आई फर्दर सॉल्व सो नीचे का आंसर क्या रहेगा मेरा 2 रहेगा अपॉन √5 प्लस √3। सो दिस इज माई आंसर। आई एम वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। अभी देखेंगे क्या क्या है। सो अभी यहाँ पे रैशनलाइज करना है इस टर्म को। सो मैं क्या करूँगा 1 अपॉन √5 माइनस √3 इसके रिवर्स साइन जहाँ पे जो भी साइन रहेगा इसके रिवर्स साइन से मीन्स यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो इससे माइनस रहेगा। सो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। सो मेरा √5
प्लस √3, यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस लूँगा, अपॉन √5 माइनस √3, एक ब्रैकेट में रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा √5 प्लस √3। सो इसे फर्दर सॉल्व करने के मुझे पता है मुझे क्या आता है, 2 आता है डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या रहेगा मेरा √5 प्लस √3। होप गाइस आपको समझ में आ चुका है किस तरह से सॉल्व करना है। इफ यू आर स्टिल एनी डाउट प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2। सो आपको एग्जांपल नंबर 2 में रैशनलाइज करना है। नाउ लेट्स सी योर एग्जांपल नंबर 2। सो इन एग्जांपल नंबर 2 हियर इज अ गिवन एग्जाम्पल नंबर रैशनलाइज करना है। सो नीचे क्या दिया आपका प्लस साइन है तो मैं इसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। सो मेरा है 8 अपॉन जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो वैसे के वैसा, इससे रिवर्स करना है, मीन्स नीचे जो दिया है उसका रिवर्स अपोजिट साइन लेना है। सो मेरा क्या रहेगा 8 अपॉन 3√2 प्लस 5 है तो मैं इसे अपोजिट साइड से, तो मेरा 3√2 माइनस √5, यहाँ पे भी 3√2 माइनस √5। सो इफ आई फर्दर सॉल्व, सो इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 9 × 2 दैट इज 18 में से 5 गए, नीचे क्या रहेगा मेरा दैट इज 13, नीचे क्या बचेगा मेरा 13 और ऊपर क्या रहेगा 24√2 माइनस 8√5। सो होप गाइस आपको समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिस सेट 2.4। सो इन प्रैक्टिस सेट 2.4 योर फर्स्ट एग्जांपल इज मल्टीप्लिकेशन। सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म। सो मैं प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 सॉल्व करके बताऊंगा, थर्ड आपको सॉल्व करना है फॉर योर होमवर्क। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा √3 से ईच टर्म ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई करूँगा। सो √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 minus √3 multiplied by √3. So if I multiply this term, so we get a 3. If I multiply by this, so we get under √21. So my answer will be 3 minus √21 minus 3 plus 21 √21. So this is my answer. Now let's see योर एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज इजिएस्ट वन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज √2। मैं √2 से मुझे कैसे मल्टीप्लाई √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √2 से √7 को। सो मेरा ये √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस साइन √7 मल्टीप्लाइड बाय √2। सो आफ्टर सॉल्विंग, सो √10 माइनस अंडर √14। This is my final answer of my example number 2. Now rationalization. Now your problem number 2 is rationalize the denominator. So I am solving problem number 3 and problem number 1. So start with problem number 1. So 1 by √7 plus √2. तो मुझे रैशनलाइज करना है, यहाँ पे मेरा प्लस साइन है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा रिवर्स साइन। सो √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √2। सो दिस बिकम वी गेट 7 माइनस 2 डिनोमिनेटर में रहेगा और ऊपर क्या रहेगा √7 माइनस √2। सो मुझे आंसर मिलेगा √7 माइनस √2 divided by 5. So this is my final answer of example number 1. So now for example number 3. So मेरा 4 upon 7 plus 4√3. So इसे मल्टीप्लाई करना है किससे 7 माइनस 4√3 से। So 7 is 7 minus 4√3. So after multiplying, so मुझे क्या मिलेगा 7 square that is 49 डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा और
न्यूमरेटर में क्या रहेगा 7 4 ज़ा 28 माइनस 7 इंटू 4 7 ज़ा 28 4 ज़ा 16√3। सो मेरा आंसर रहेगा फाइनल, माई आंसर विल बी फाइनल, क्या रहेगा मेरा आंसर फाइनल 28 minus 16√3 divided by 1. This is my final answer of example number 3. So hope guys आपको समझ में आ चुका है किस तरह से सॉल्व करना है. So if you are still in doubt, please mention in the comment section. Don't forget like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching Success EduTech.